प्रेस का ये 10 मिनट का समय है, आपके दिमाग में दिल में कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। जी sir. Good evening everyone, and my first question is for Professor Chu Bakwe. Hello sir. So are you planning some more films on Indo-Vietnamese cultural heritage, or is this your first film? Are you planning some more films? Tôi rất vui hôm nay được dự một buổi ra mắt bộ phim Vườn Tình Yêu và giữa Việt Nam và Ấn Độ. Ngày hôm nay tôi có một những niềm vui, tôi càng phải là bản thân tôi luôn luôn bảo tồn văn hóa, giữ một phong cách của một người nghệ sĩ, và trong tương lai thì tôi sẽ muốn tham gia có nhiều những bộ phim, nhiều những chương trình của nghệ thuật quan họ được UNESCO đã công nhận văn hóa, và tôi cũng sẽ So today I'm very happy when I come to the event today for launching the new brand Kisura on Way OTT. As an artist, my role is like the cultural heritage. So in the future, if it has some project or it has some planning some movie on the way, like whatever I do for Quan Họ heritage accepted by UNESCO, I'm also very happy to join. Tôi rất muốn giữa đất nước Ấn Độ cũng có nhà làm phim cùng với đất nước Việt Nam chúng tôi để nhiều bộ phim khác, và muốn trao đổi cái sự văn hóa của hai quốc gia, cũng là công nghiệp văn hóa. Chúng tôi muốn có những cái điều tình cảm luôn luôn tôi mong đợi, và luôn luôn tôi có những cái mà công việc của cái việc bảo tồn tôi sẽ hết mình. Yeah, as you know, between India and Vietnam, we have the culture between two countries also has something familiar. So I also happy if in the future it has some new plans and to encourage protecting the heritage between two countries, the culture of two countries. Tôi rất cảm ơn hôm nay là truyền thông của đất nước Ấn Độ cùng báo giấy, báo hình, báo tiếng đã có mặt trong chương trình ngày hôm nay. Yeah, I also want to say thank you for all the media. You'll be here today to give the information about this event. Cảm ơn quý vị rất nhiều, và cho tôi gửi những tri ân, những tình cảm của người nghệ sĩ đại diện cho Việt Nam chúng tôi, để tri ân tất cả các bạn Ấn Độ nhiều. Yeah, from the bottom of my heart, and is an artist to present for all the Vietnamese artists. I also want to say thank you again for all the media to be here. Và tôi xin hết đây ạ. Tôi dừng lời cho Victor Roth. Thank you so much sir. Hi sir, my name is Rajesh Arya. I'm from Badi Channu News. Sir, my question, you work with Bollywood. So what was your experience? What do you think about with the Bollywood candidate? Yeah, there is a question to him only. Now, Exactly. what is your experience with, how is your experience with Bollywood? Tôi khi mà làm phim với Bollywood thì tôi có những cái trải nghiệm, những cái tình cảm đặc biệt. Tôi rất là yêu nghệ thuật, cái việc bảo tồn cho đất nước Ấn Độ và Việt Nam chúng tôi. Yeah, this I also very happy when this time I work with the India team, Bollywood industry. Yes. सर, यूथ एक मेजर ऑडियंस होती है, कोई भी मूवी हो तो यूथ को ये मूवी क्या मैसेज देने वाली है आपके पर्सपेक्टिव से? ये मूवी यूथ के लिए बनी है, क्योंकि आज का जो यूथ है, चाहे इंडिया का हो या वियतनाम का हो, वो अपने हेरिटेज से दूर कहीं जा रहा है। उसका जो रूट है, वो रूट से जो एक जुड़ाव था वो खत्म होता जा रहा है।
आजकल अगर आप इवन इंटरनेट पे देखेंगे 99% जो कंटेंट है वो इंग्लिश ही है और बाकी 1% से भी लेस कंटेंट है जो कि बाकी भाषाओं की है। तो यहाँ जो कल्चर हेरिटेज जो हमारा छूटा हुआ एक हेरिटेज है उसे जोड़ने के लिए ये फिल्म बनी है, खासतौर पे यूथ को कनेक्ट करने के लिए बनी है। तो मुझे लगता है कि यूथ जब इस फिल्म को देखेंगे तो दे विल बी एबल टू कनेक्ट विद देमसेल्फ एंड दे विल बी एबल टू कनेक्ट विद व्हाट वाज हैपेंड 1000 years बैक। तो यूथ सेंट्रिक है और जो चीज छूट रही है यूथ में उसको दर्शाने की कोशिश है। सर मेन मोटो क्या था इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स का इस मूवी को लाने से पहले? मेन मोटो ये है कि दोनों देशों का जो एक 1000 साल पुराना कॉमन हेरिटेज है उस हेरिटेज को सामने लाना, फिल्म के माध्यम से आप तक पहुंचाना, जो शायद हम भूल चुके हैं। आज भी अगर आप वियतनाम में जाएंगे तो भारत के मंदिर और भारत की प्रथा ये सब देखेंगे, कहीं कहीं जगह पे है। तो हमें ऐसा लगता है कि एक पिछड़े हुए दो भाई इंडिया और वियतनाम है और वो एक फिल्म के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश है। Thank you. My question is Professor Chubakwe. In this side, sir. My question is to you. What message would you like to give to the youth of India? What message would you like to give to the youth of India? Youth of India. Yeah, what message you would like to give to the youth of India? Tôi muốn bộ phim này là nó sẽ được rộng rãi cho lớp trẻ và để yêu quan họ, được UNESCO công nhận văn hóa phi vật thể nhiều hơn. Yeah, when I joined this movie, I only have one message that I want the Vietnam culture, especially Quan Họ folk song accepted by UNESCO, will spread to the rest of the world, especially in the young generation, when they know about Vietnamese culture and they love it more than. Thank you. थैंक यू सो मच सर। सर मेरा सवाल आपसे है, OTT ऑफिशियल्स जितने भी आए हैं आपसे मातृभाषा में ही मैं सवाल पूछूंगी। ये फिल्म यहाँ तो हिंदी में देखी जा सकती है, लेकिन वियतनामी ऑडियंस के लिए क्या इसे आप वियतनामीज में भी ट्रांसलेट या डब करने वाले हैं? डबिंग ऑलरेडी अंडर प्रोग्रेस है इसकी, ठीक है। तो वो एक डब वर्जन वियतनामीज ऑडियंस के लिए भी अवेलेबल होगा। हाँ, तमाम लोग वियतनामीज में देख सकते हैं, राइट? हम लोग पास टेक्निकल फैसिलिटी है कि आप मल्टीपल लैंग्वेजेस में जो लैंग्वेज चाहे वो, जैसे यूट्यूब में आप देखते हैं जी जी, उस तरह के सारी सुविधाएं हैं प्लेटफॉर्म पे। अपनी आप ऑडियो की लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं कि किस में आप ऑडियो सुनना चाहते हैं। ओके, कोई डेट फिक्स है वहाँ कब ऐसे डब लॉन्च होगा? शॉर्टली होने वाला है, ठीक है। प्रोड्यूसर्स पे करें। ओके, ठीक है। सर अगेन माय क्वेश्चन OTT प्लेटफॉर्म के लिए है। सर ये फिल्म आज से रिलीज हो गई है, सो व्हाट यू एक्सपेक्ट फ्रॉम ऑडियंस इस प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने के बाद ये फिल्म कहाँ तक जाएगी? सो व्हाट यू थिंक अबाउट दैट, व्हाट यू हैव एक्सपेक्टेशन? देखो, आप अगर जो प्रसार भारती बेसिकली लोक सेवा प्रसारक है, इंडिया का पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर है, और हमारी जो हिस्ट्री है वो स्टार्ट होती है आकाशवाणी से। आकाशवाणी जो 1936 में कंसीव हुआ, तो वहाँ से हम लोग एक लोक सेवा का काम करते आ रहे हैं। और हमारा एक जो लोक सेवा से रिलेटेड जो भारतीय जो हेरिटेज कल्चर, इनको प्रमोट करने का एक मोटो रहा है। फिर जब दूरदर्शन आया तो दूरदर्शन ने उसी यात्रा को आगे बढ़ाया। अब वेब्स OTT के साथ हम उस यात्रा को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है हमने। तो ऑडियंस से जो एक हमारा ऑडियंस से जुड़ाव है, उस जुड़ाव में वेब्स OTT एक और कड़ी है, जो जहां हमारा टेरेस्ट्रियल सिग्नल नहीं पहुंच रहा है वहाँ वो डिजिटल सिग्नल के माध्यम से जो भी एक लोक सेवा से रिलेटेड कंटेंट है उनको देख सकते हैं, इंफॉर्मेशन वाले कंटेंट देख सकते हैं। और अगर आप हमारे प्लेटफॉर्म पे, आप, मुझे पता नहीं है कितने लोगों ने प्लेटफॉर्म देखा है, बहुत ही अनोखा प्लेटफॉर्म है और उसमें बहुत विविधता से भरा हुआ कंटेंट है।
मतलब जो ऑन डिमांड जो जैसे हम लोग नॉर्मली OTT प्लेटफॉर्म को जानते हैं, उसके अलावा हमारे यहाँ रेडियो चैनल्स बहुत सारे हैं, टीवी चैनल्स बहुत सारे हैं, साथ में हम लोग मैगजीन्स, रोजगार समाचार, ऐसी सुविधाएं भी वहाँ ऑफर कर रहे हैं। तो उसी श्रृंखला में जो ये एक दोनों देशों की विरासत से बनी हुई एक मूवी है, तो ये ऑडियंस को हम लोग एक लोक सेवा के अपना जो दायरा है उसी में प्रस्तुत कर रहे हैं। और इसमें मैं आप सब लोगों को एक जानकारी और देना चाहूँगा कि ये जो मूवी है, इसके लिए जो प्रोड्यूसर्स हैं उन्होंने ये प्रसार भारती को ग्रेटिस में मूवी दी हुई है, इसका कोई चार्जेस OTT के ऊपर नहीं है, और हम भी ऑडियंस को ये मूवी फ्री में ही दिखा रहे हैं। हम लोग भी उसके ऊपर कोई पेवॉल नहीं लगा रहे हैं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग दोनों देशों की संस्कृति से वाकिफ हो सकें। Great, sir. But someone wants to download this particular OTT, so how can do it? अगर कोई व्यक्ति इस OTT से अवगत नहीं है, जानकारी नहीं है उसको, तो how can go for that particular OTT? OTT is widely available across all the Play stores. I mean, like any other application, it is available on Google Play Store, Apple Play Store, all connected TV network. And since it is only a 1.5-year-old platform, so maybe the awareness is not that much as about other OTTs, but it is in the process. Like our CEO has already informed that more than 1 crore users are there on the platform. They are already accessing daily. We are getting more than 1 million users on our platform. So its awareness is increasing day by day. हेलो सर। जी सर, मेरा एक क्वेश्चन है डॉक्टर BRC सर के लिए। आप आगे इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और वेव OTT दोनों मिलकर के कोई नए प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो अगर, तो उसके बारे में हमें जानकारी दीजिए। अगर चतुर्वेदी जी इजाज़त देंगे तो ज़रूर हम करना चाहेंगे। और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड के साथ जो टैलेंट है, हर दिन लगभग 20 नए रिकॉर्ड बनते हैं हमारे देश में हर दिन, और हर दिन लगभग 100 से अधिक एप्लीकेशन आते हैं, तो उसमें से 20 रिकॉर्ड बन ही जाते हैं। तो उन सब का जो टैलेंट है वो वेव्स के माध्यम से, जैसे CEO साहब से हमारी बात हुई थी, तो वो हम ज़रूर चाहेंगे कि वेव्स OTT के माध्यम से ये टैलेंट लोगों तक पहुँचे, और आने वाले दिनों में शायद आप देख पाएँ। बेहतरीन। प्रसार भारती में जो भी कंटेंट या जो भी कुछ चीज़ें होती हैं, वो बहुत सारी नीतिगत व्यवस्थाएं हैं उनके लिए। तो उन नीतिगत व्यवस्थाओं में चाहे वो डॉक्टर विश्वस्वरूप हो या जो भी हो, जब वो हम लोगों के पास अप्रोच करते हैं तो उन्हीं व्यवस्थाओं में उनका प्रपोजल एग्जामिन किया जाता है, और उसी हिसाब से, मतलब उसमें इंडिविजुअल का कोई बहुत रोल नहीं है, मेरा या कोई भी XYZ इंक्लूडिंग CEO का। वो सारी जो नीतियाँ हैं उनके तहत ही प्रोग्राम को हम लोग आगे ले आते हैं। I would request that let the other people also ask, give the some other media bandhu, unko bhi chance Yeah. Hi sir, this is Pintu from News Live, and my question is from you sir. There is a lot of OTT platform in India like Amazon, you can say Netflix and Jio Hotstar, but why don't you choose like Wave OTT platform for release this film? ये फिल्म अनकन्वेंशनल फिल्म है, पहली बात तो ये है। आप जब देखेंगे तो ही आप समझेंगे कि बॉलीवुड फिल्म ज़रूर है, लेकिन फिल्म से जो आप सोचते हैं कि उस तरह का नहीं है। ये कल्चरल हेरिटेज एक पर्पस से बनी है, तो जब एक पर्पस से बनी है तो उसका प्लेटफॉर्म भी उतना स्पेशल होना चाहिए, अलग होना चाहिए। एंड जैसे अभी सर ने बताया कि अगर आप वेव्स में जाके अगर देखेंगे तो इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट फिल्म, उससे ज़्यादा कुछ है। तो सारा हमने और भी जो OTT प्लेटफॉर्म उसको भी हमने देखा और वेव OTT को देखा, समझा, तो मुझे लगा कि इसका जो घर है इस फिल्म का वो वेव OTT ही होना चाहिए। और आप भी जब इस फिल्म को देखेंगे तो आपको लगेगा कि इट इज द मोस्ट सूटेबल प्लेस वेयर द फिल्म शुड बी। हेलो सर, मैं मोहम्मद साजिद इरोज टाइम से। सर मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ डॉक्टर BRC से कि क्या सर ये जो फिल्म बनाई है आपने, आपका क्या मकसद था इस फिल्म को बनाने का? क्या हमें आगे भी आपकी जो रुचि है वो फिल्मों में और मिलेगी? देखिए, फिल्म तो एक माध्यम है, एक कम्युनिकेशन का माध्यम है, मीडियम है, एक इंफॉर्मेशन को पास ऑन करने का। और आजकल जहाँ की पूरे अभी मंत्री जी ने बताया, देश दुनिया में हर जगह अस्त व्यस्त है, वॉर वगैरह चल ही रहा है, तो ऐसे में पीस का संदेश देना चाहते थे हम। उसकी एक छोटी सी एक कोशिश आप बोल सकते हैं इसको, इस फिल्म को। तो ये इस सोच से ये फिल्म बनाई। और फिर अभी पिछले दिनों जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ वियतनाम आए थे, तो हमारे भारत के प्रधानमंत्री
मोदी जी के साथ MOU साइन किया ऑन कल्चरल हेरिटेज दोनों देशों का बढ़ाने का। तो ये दोनों देशों की जो कॉमन कल्चरल हेरिटेज है उसको बढ़ाने की एक कोशिश है। और हमारे जो इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड के रिकॉर्ड होल्डर्स हैं उनमें बहुत टैलेंट है, जब मूवी में आप देखेंगे उनको तो उनको एक प्लेटफॉर्म भी हम देना चाह रहे थे कि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, इस फिल्म के माध्यम से लोगों तक उनका टैलेंट पहुंचे। तो ये कई सारे मकसद से हमने इस फिल्म को बनाया। लास्ट 1-2 more questions because we are running out of the time. छोटे छोटे सवाल 1-2 और होंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। माइक सर, OTT दरअसल खुला खेल फर्रुखाबादी है, ऐसे में आप कैसे संयोजन बनाएंगे इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स इसमें बेहतरीन फिल्म बनाने में? OTT समझा नहीं जी सर, उसमें बहुत कुछ ऐसे आते हैं जो लोकल है, गाली गलौज भी होती है, ऐसे में कैसे संयोजन बनाएंगे इसके इतर वेब्स के इतर जाकर आप OTT में? और भी तो वेव्स का अगर आप देखेंगे तो जो This will answer, I think सर को देने दीजिए। Waves, this is a question जब for waves. हमने अप्रोच किया हमें तो बड़ी मुश्किल हुई कि उनका जो स्क्रूटनी का तरीका है, और बाकी तो सर बताएंगे कि वेव्स के जो कंटेंट मैंने देखा, मेरी बेटी भी देखती है, तो कंटेंट बाकियों से अलग है, डेफिनेटली अलग है। बाकी सर आप ही बताएंगे, ये क्वेश्चन एक्चुअली आपके लिए है। जैसे कि बार बार कहा गया, वेव्स जो है ना एक भारत का अपना एक पब्लिक सर्विस स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है, और इसमें ना बहुत ही साफ सुथरा कंटेंट प्रदर्शित किया जाता है। मतलब वो हमारा जो ब्रॉडकास्टिंग या जो कंटेंट का कोड है, हमारी जो पॉलिसी है, वो यही है कि मतलब इतनी भीड़ में जहाँ पे तरह तरह का जो आप जैसे बात कर रहे हैं उस टाइप का कंटेंट हम नहीं लिख के आते, हम बहुत साफ सुथरा कंटेंट लिख के आते हैं। और जैसे कि ये डॉक्टर विश्वरूप जी ने जो ये फिल्म को, जो भारत और वियतनाम की साझा संस्कृति को प्रदर्शित करते हुए फिल्म है, तो ये एक साफ सुथरी फिल्म को दिखाने का इससे अच्छा और कोई माध्यम हो नहीं सकता था। तो मेरा अंत में यही आग्रह आप सभी से है कि आप किसी भी, जो अगर आप आईफोन यूज़ करते हैं तो एप्पल स्टोर में जाके, अगर आप एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हैं तो गूगल प्ले स्टोर पे, इसके अलावा स्मार्ट टीवीज़ में LG, सैमसंग, फायर टीवी, वहाँ पे प्ले स्टोर में वेव्स सर्च कीजिए, आपको एप्लीकेशन मिलेगा, उसको डाउनलोड कीजिए और इस फिल्म का मजा लीजिए। श्रीमान जी, मेरा एक आखिरी सवाल है, इस प्लेटफॉर्म पे अगर पब्लिक को, ऑडियंस को ये फिल्म पसंद किसी कारणवश नहीं आती और अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला, तो आगे फिल्म बनाने का प्रयास जो है जारी रहेगा या इसको यही रोक दिया जाएगा? जी श्रीमान जी, डॉक्टर साहब आपसे है मेरा सवाल जी। इस प्लेटफॉर्म पे अगर ये फिल्म जनता को पसंद नहीं आती किसी कारणवश, क्योंकि मसाला फिल्में ज़्यादा चलती है, मर्डर ये ज़्यादा पसंद करते हैं, और ये फिल्म अगर किसी कारणवश नहीं चली, तो आपका ये जो प्रयास है जारी रहेगा, आगे भी नई कोई फिल्म बनाई जाएगी इसी तरीके से? प्रयास तो चलता रहेगा। जैसे मैंने बोला कि ये जो फिल्म बनाना मकसद नहीं था, एक मैसेज को कम्युनिकेट करने का एक मीडियम है। जैसे ये अभी भी एक मीडियम है, प्रेस कॉन्फ्रेंस, फिल्म एक और मीडियम है, किताब एक और मीडियम है। इससे पिछले साल मैंने किताब भी इसी गार्जियन ऑफ हेरिटेज इसी तर्ज पे लिखी थी। तो फिल्म तो सिर्फ एक मीडियम है, फिल्म हमारे लिए कोई व्यापार नहीं है, ये एक माध्यम है जिसके थ्रू हम लोगों तक पहुँचेंगे। तो डेफिनेटली रिस्पेक्टिव कि फिल्म का लोग पसंद करेंगे कि नहीं करेंगे, तो ये कोशिश जारी रहेगी।